Okay, in this video, we're going to talk about alkenes. In the previous video, I talked about alkenes. I talked about the two reactions of alkenes and uh, also about some of the properties of alkenes that they do not react with species that easily, and that they are saturated hydrocarbons, and that also they're yeah. So saturated is one point, and hydrocarbons is a second point. And then I also talked about the reaction in detail, which was the substitution reaction and the trend, not the trends, but basically the detail of alkanes, right? Like the previous video is actually in-depth alkane detailed video. This video is gonna be about alkenes now. So we're done with the one member of the homologous series, which was alkanes. Now we are on alkenes, right? This is the second member of the homologous series. Now we discussed in the start that there is another property of alkene. Now how we in a similar fashion, uh, like we discussed the properties of alkanes, we're gonna discuss the properties of alkenes. So it's not very different than alkanes, but it's quite the opposite. Okay, not very different. By not very different, I mean it's not gonna be more than alkanes, but the properties are basically gonna be three, but they're gonna be exactly the opposite of alkane. So number one property is that alkenes are also pure hydrocarbons. We talked about alkanes yesterday. उसमें भी हमने यही बात की थी यार, alkanes भी आपके पास प्योर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. I'm sorry. ओके, सो हमने कल भी बात की थी, उसमें भी हमने यही कहा था कि alkanes आर प्योर हाइड्रोकार्बन्स. तो alkene भी प्योर हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, just give me a second. Okay, so pure hydrocarbon. I'm going to go to the highlighter and I'm going to just highlight this part because pure is not very important. The more important point here is the hydrocarbon. So it is a hydrocarbon, that's very important. um this thing this thing I told you yesterday as well, that this means that the molecule has carbon and hydrogen only. ठीक है, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी, अगर एल्केन आते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं आते वो वीडियो देख लें. आई कैन ऑल्सो लिंक इट अप. आपके लेफ्ट पे आ रही होगी, शो हो रही होगी. ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देख लें. उसके अंदर एल्केन के बारे में बात किया, इस वीडियो में हम एल्कीन के बारे में बात करेंगे. सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट एल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbons. Oh my god, unsaturated hydrocarbons. Okay, अब इसका क्या मतलब है? सो वी yesterday we studied about सैचुरेटेड, आज हम अनसैचुरेटेड. मैंने आपको कल भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों का बताया था. सो अनसैचुरेटेड बेसिकली होता ही है कि जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है. जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसका एक एच यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा. इथीन का मॉलिक्यूल है. So this is an unsaturated molecule. The reason is this bond here. It is a double bond. ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, that is over here. तो इसलिए ये unsaturated. Unsaturated का मतलब है कि it's not completely saturated. इसके अंदर रूम है for to make. देखो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हुआ हुआ ना. The prime purpose of calling it unsaturated is because इसके पास रूम है किसी और के साथ बॉन्ड करने की. क्योंकि देखो ये कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड हुआ हुआ है. अब हमने ये कहा कि यार ये जो डबल बॉन्ड है ना, अगर मैं डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल किसी तरह तोड़ दूँ इसको, ये बस एक बॉन्ड रहे, तो कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की फैसिलिटी आ जाएगी, इसके पास भी, क्योंकि इन्होंने चार पूरे करने ना. पहले इनके पास ये दो तो पहले ही है, ये दो भी पहले ही है, बट ये दो नए आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला. तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ला के लगा सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी आप लगा सकते हो ला के. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी कॉल दिस थिंग अनसैचुरेटेड. अदरवाइज इसका कोई बस ये इसका मेन डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है. पेपर में पूछेगा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, तो आपने डेफिनेशन यही लिखनी है कि सैचुरेटेड इज़ इन विच द कार्बन चेन, इन विच द होल कार्बन चेन देर इज़ नो सिंगल, देर इज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट.
यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इन द होल कार्बन चेन देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन टू कार्बन लिखना है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अदरवाइज तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड ही बनाता है, बट दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू सैचुरेशन, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि एल्कीन्स जो हैं, एल्कीन्स आर रिएक्टिव, ठीक है। ऑब्वियसली कि ये इनके रिएक्शंस के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, बट रिलेटिवली अगर आप एल्केन के रिलेशन में बात करें तो एल्केन्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। एंड द रीज़न इज़, इसकी रीज़न अगर वो आपसे पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर कि वाई एल्कीन्स मोर रिएक्टिव, तो आप लिखेंगे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है वही एक रीज़न है इसके, मतलब इसकी जो सैचुरेशन है वो अनसैचुरेशन है, वही इसकी रीज़न है मोर रिएक्टिव होने की, ठीक है। सो ये जो इसकी अनसैचुरेशन है, दिस पॉइंट ओवर हियर, वो इसकी रीज़न है इसके मोर रिएक्टिव होने की। ओके, आगे आ जाते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली तीन इनकी प्रॉपर्टीज़ की। अब हम देखते हैं कि एल्कीन जो हमने होमोलोगस वाले दिन पढ़ी थी कि एल्कीन होती क्या है, तो हमने उसका जनरल फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सो एल्कीन्स जो होती हैं उसके अंदर कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर कहीं एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं CnH2n, बस ये लिखते हैं, ठीक है। सो एल्केन का जहाँ 2n+2 होता है यहाँ पे वो नहीं होता, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या होता है CnH2n। इसकी एग्जांपल अगर आपने लेनी है तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल क्या है, कोई, अब मैंने आपको बताया था कि मीथेन एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो, अगर आपको इस चीज़ की डिटेल पता, यू वांट टू नो द डिटेल, तो आप चाहे मेरी होमोलोगो सीरीज़ वाली वीडियो पे, द फर्स्ट वीडियो आई मेड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको पता चल, मैंने एक्सप्लेन किया है कि मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट और क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी इथीन वगैरह, इथीन से आगे सारी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार मैंने 3 कार्बन वाली एक एल्कीन बनानी है, तो देखो यहाँ पे ये मैंने एल्कीन बनाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे एल्कीन बनाई, अब इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये एक इथीन बन गई है, अब सॉरी प्रोपीन बन गई है, दिस हैज 3 कार्बन। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, C3H, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6। सो द फार्मूला नैरोज डाउन टू CnH2n, अगर C का जितना नंबर होगा H का उससे डबल नंबर होगा। जनरल फार्मूला तक याद, आपको ये बातें समझ आना चाहिए, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसकी तरफ आएंगे कि यार इस एल्केन के अंदर, सबसे एल्कीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो अगेन रिएक्शंस ही है, ठीक है। रिएक्शंस, जैसे मैंने एल्केन के रिएक्शन बताए थे वैसे ही एल्कीन के रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन एल्कीन के रिएक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, एंड इन रिएक्शन को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, रिएक्शंस नंबर 1, सॉरी आई एम गोना राइट इट विद मोर वाइब्रेंट कलर ताकि अच्छी तरह नज़र आ जाए। नंबर 1 रिएक्शन आपके पास एल्कीन का होगा कंबस्शन, ये मैंने कल भी बताया था, आई मीन इन द लास्ट वीडियो। नंबर 1 रिएक्शन कंबस्शन है, और इस रिएक्शन के पूरी डिटेल अगर आपने देखनी है तो वो मेरी एल्केन वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में कंबस्शन समझाई है, वो हर होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर के लिए सेम होती है उसके प्रोडक्ट्स में। तो अगर आपने बहुत डिटेल में जाना है तो उस वीडियो में चले जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। सेकेंड, इसका जो रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग। अच्छा, इधर एक एक बात आप ध्यान से देख लें कि ये कैटालिटिक वर्ड जो है ना, दिस इज़ सिर्फ अगर आप इसको लगा दें तब भी ठीक है, सिर्फ क्रैकिंग लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि क्रैकिंग दो तरह की होती है, थर्मल क्रैकिंग भी होती है और कैटालिटिक क्रैकिंग भी होती है। ओ लेवल्स के अंदर इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सी क्रैकिंग करानी है, थर्मल करानी है कि कैटालिटिक करानी है, क्योंकि वो कभी कभी आपसे कैटलिस्ट पूछ लेता है क्रैकिंग का, कभी कभी आपसे टेम्परेचर पूछ लेता है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ क्रैकिंग याद रखें, और मैं इसका आपको टेम्परेचर भी बता दूंगा और कैटलिस्ट भी बता दूंगा जो यूज़ होता है। तो जस्ट रिमेंबर क्रैकिंग। थर्ड, एडिशन, ठीक है। अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ इसे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, आई जस्ट मेक इट इवन मोर क्लियर। सो थर्ड रिएक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं इनकी डिटेल में जाऊँगा। नंबर 1 रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो है कंबस्शन। कंबस्शन रिएक्शन की हमने कल बात की थी, कंबस्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है।
तो इसमें ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ये O2 के साथ रिएक्शन होता है एल्कीन का, ठीक है, एयर के साथ एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आप ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि होता कैसे है। सो कंबशन अगर करानी है, सो लेट्स मी जस्ट चेंज द कलर टू समथिंग वाइब्रेंट। ओके, कंबशन अगर करानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एल्कीन पकड़ूंगा, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। ये क्या, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन, कंप्लीट कंबशन। और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर अगेन इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है कि कंप्लीट कंबशन क्या होती है और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है, तो वो मेरी एल्किन वाली वीडियो है, उसके अंदर जाके देख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्कीन को फॉरगॉट मैं कलर कौन सा यूज़ कर रहा था, सी यही था, ओके वट एवर इट इज़। सो इनकम्प्लीट कंबशन में हम क्या करते हैं, हम एक एल्कीन को पकड़ते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारे पास क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन सूट निकलता है और साथ में क्या निकलता है, वाटर। तो ये 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्वियसली अगेन अ गैस, वाटर इज अ लिक्विड। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब कोई भी एल्कीन आप देख चूज़ कर लेते हैं, ब्यूटीन चूज़ कर लेते हैं। ब्यूटीन का फार्मूला क्या होता है, C4H8। अगेन अगर ये फार्मूला में मसला आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो होमोलॉगस सीरीज़ वाली, उसमें जाके देख लें, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि C4H8 कैसे बनता है, क्यों C4H8 क्यों है, ठीक है। ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे थोड़ा सा समझाया था। बॉन्ड में अगर आप 4 कार्बन साथ जोड़ दें और वहाँ पे उसमें एक कहीं डबल बॉन्ड लगा दें तो आपके पास 8 हाइड्रोजन लगने की कैपेसिटी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसकी कंप्लीट कंबशन अगर हमने करानी है, हम सॉरी, इसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो कंप्लीट कंबशन हम कराते हैं। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब मैंने कल बताया था कि इस इक्वेशन को बैलेंस, कल आई मीन इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड कि इस कंबशन कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं एग्जैक्ट स्टेप्स में। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप कार्बन नंबर बैलेंस करें, इधर कार्बन 4 है तो इधर भी कार्बन 4 हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन, अब लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 8 है, राइट हैंड साइड पे उसके हाफ हाइड्रोजन लगा दें। इधर 8 है तो इधर मैं कितने लगाऊँ, 4 लगाऊंगा, ठीक है। और एंड पे आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लें। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4, इधर हैं 8 ऑक्सीजन, 4 × 2 8 ऑक्सीजन, और इधर हैं 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू आई नीड हियर, आई नीड 6 ऑक्सीजन हियर। तो यहाँ मैंने 6 लगा दी, ये मैंने 6 ऊपर लगाया, असल में 6 इधर लगेगा ताकि क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ऊपर करके लगाया। सो बैलेंस करना भी मैंने आपको एल्केन वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में सिखाया था कि कंप्लीट कंबस्शन एंड कंप्लीट कंबस्शन की इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले वाले रिएक्शन की तरफ। अगला वाला रिएक्शन है क्रैकिंग। सो आई एम नॉट गोना इवन राइट कैटालिटिक, बस मैं क्रैकिंग ही लिखूंगा। क्रैकिंग क्या चीज़ होती है, क्रैकिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रैकिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रैकिंग को ज़रा समझें। सो क्रैकिंग बेसिकली, क्रैकिंग, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ breaking down large alkane molecules into smaller alkenes plus alkanes, ठीक है। तो क्रैकिंग क्या होता है, अब आप यहाँ पे इसको इन दोनों वर्ड्स को आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप लिख सकते हैं। अगर उस बहुत स्पेसिफिक होना है तो एल्कीन्स और एल्केन, इनटू स्मॉलर एल्कीन्स एंड एल्केन। तो क्रैकिंग करते क्या है, हम एक बहुत लंबी एल्केन की चेन है, फॉर एग्जांपल 9 कार्बन वाली चेन है, तो मैं उसको क्रैक करके क्या कर सकता हूँ, एक एल्कीन निकाल सकता हूँ उसमें से, बाकी मैं जो भी बच जाएगा वो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ आई विल शो यू कि ये रिएक्शन होता कैसे है। सो बेसिकली हम देखते हैं कि ओके, सो एग्जाम में वो आपको ये कैसे रिएक्शन करने को देगा, वो आपको एक प्रोडक्ट बताएगा, मतलब रिएक्टेंट आपको बताएगा कि यार मैंने रिएक्टेंट आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 कार्बन वाली एल्कीन आपको दे दी,
ठीक है, ये एल्कीन है। सो दिस इज द रिएक्टेंट, उसने आपको एग्जाम में बताया। ठीक है, उसने कहा दिया आपने इसको क्रैक कराना है। अब वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड है, इसके क्रैकिंग के अंदर कोई भी आपने इधर कोई और रिएक्टेंट नहीं ऐड करना, बस एक ही एल्कीन है उसको क्रैक कराना है। कोई भी जैसा ऊपर हमने किया था ना बस ने ऑक्सीजन ऐड की थी, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपने कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ कि कंडीशन क्या लगेगी इसको क्रैक करने में। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एल्कीन किस चीज़ में ब्रेक होगी। आई एम जस्ट गोना शिफ्ट इट डाउन लिटिल ताकि ये थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए। ओके, सो अब ये C10H20, अब वो आपको प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपको बताएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स इसमें से एक आपको नोन होगा। वो आपको कहेगा कि ये इतनी लंबी जो एल्केन है ना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज एक्चुअली एन एल्केन, सो आई हैव टू मेक इट 22। सो अब वो आपको ये कहेगा कि इस एल्केन को मैंने तोड़ा और इससे मेरे पास एक एल्कीन आपको बता देगा। इससे कौन सी एल्कीन बनी वो आपको बताएगा। सो वो कहेगा कि इससे मेरे पास बन गई, I'm gonna stick with नो आई विल एक्चुअली चेंज इट ताकि मैं ये पता चल जाए जो मैं इस कलर से लिखूंगा दैट इज़ कि वो वाला प्रोडक्ट आपको नोन होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको नोन होगा और दूसरा प्रोडक्ट आपने खुद से लिखना होगा। सो जो नोन प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा वो आपको देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह जब 10 कार्बन वाली आएगी एल्केन तो यही प्रोडक्ट आपको नोन होगा, नहीं, वो कोई भी एल्किन बता सकता है जो 10 से छोटी वाली कार्बन की होगी। सो वो आपको कह देते हैं कि जी एक ब्यूटीन निकल गई इसमें से। सो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ओके ब्यूटीन निकल गई, मैं ब्यूटीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखना है, अब ये ब्यूटीन निकल गई, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब ये दूसरा जो प्रोडक्ट है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, मैं सॉरी मैं बाकी अपना ओरिजिनल कलर पे आ जाता हूँ। सो जो दूसरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 2, ये आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ एक और कलर के ऊपर, ये। ठीक है, तो आपके पास एक और प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको अननोन है, ये आपने खुद से लिख के बताना है उसे कि यार ये प्रोडक्ट है। तो उसको देखने के लिए जो अननोन प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो अननोन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे देखना है कि कार्बन कितने थे, 10। यहाँ पे कार्बन कितने डिलीट हो गए, 6। तो रिमेनिंग कार्बन कितने हो गए, कार्बन 10 माइनस कार्बन 6 इज इक्वल टू कार्बन 4। तो रिमेनिंग कार्बन बच गए 4। तो आपने एक एल्कीन बना देनी है, एल्की सॉरी 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 एल्कीन नहीं, एल्किन बना देनी है, एल्किन बना देनी है ये 4 कार्बन वाली। ठीक है, तो 4 कार्बन वाली एल्किन कौन सी होती है, हम यहाँ से ये भी मिट गया है, आई डोंट नो व्हाट टाइम आई इवन डूइंग बट या एक सेकेंड बस, यहाँ से ये 22 था। तो आपने क्या करना है, आपने कार्बन नंबर यहाँ पे क्या लिख देना है, कार्बन नंबर आपने यहाँ पे 4 कार्बन वाली एल्केन बना देनी है। तो यहाँ पे कार्बन कितने आ जाएंगे, आई एम सो सॉरी अगैन, दिस शुड बी द ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये मैंने चूँकि 4 कार्बन वाली एल्कीन निकाली है तो मेरे पास ये आएगा। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सी गलती हो गई है, ये आप देख लें कि ये यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ था। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एल्कीन उसने कहा कि जी ब्यूटीन निकल गई। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ब्यूटीन की कितने कार्बन होते हैं, हमने कहा कि यार वो तो C4H8 ही होती है। ऑलराइट, तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर C4H8 होती है तो फिर कितने कार्बन बच गए। ठीक है, आपने कहा कि यार पहले 10 कार्बन थे, अब C4H8 निकल गया, मतलब 10 कार्बन थे अब C4H8 निकल गया तो कार्बन 6 बच गए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि यार कार्बन 6 वाली एक एल्केन बना दो साथ उसके। तो एल्केन का फॉर्मूला लिख दे, C6 एल्के। अब फॉर्मूला आपको आता है जॉइंट फार्मूला, अगर 6 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 प्लस 2 14। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने अपनी इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह की इक्वेशन कंप्लीशन के लिए वो आपको दे सकता है। ऐसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे देता हूँ, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें खुद से। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, इसका आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कहता हूँ कि C20H40 42, ठीक है, 2n+2 या। सो इसको मैंने ट्रैक किया, gives C5H10 and another
product. Write down the complete equation of the reaction. मैंने कल भी कल कह रहा हूँ, आई कीप सेइंग कल फॉर द प्रीवियस वीडियो। आई मीन के मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिएक्शन का जो मतलब है, रिएक्शन को मैं RxN से लिखूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि C28। अब मैंने आपको अगैन ये बात बताई कि अब आप कई बच्चे ये होंगे जो ऐसे कहेंगे कि जी आपने बताया था कि कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ये आपको बस आने चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। देखो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था इसके नाम आने चाहिए आपको 4 कार्बन के, जो भी एल्कीन एल्केन एल्कोहल्स होंगी 4 कार्बन वाली नाम आने चाहिए। C20 का नाम आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर वो नाम लिखेगा भी तो साथ उसका फॉर्मूला लिख के देगा आपको, क्या इवन अगर कंप्लीट फार्मूला नहीं लिख के देता वो ये बता देगा एन एल्केन विद 20 कार्बन्स, तो आप उसका फार्मूला कंप्लीट कर लें बाय अप्लाइंग द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला तो सबके लिए सेम है ना, बेशक 20 कार्बन हो, बेशक 100 हो, बेशक 2 हो, ठीक है। सो ये चीज़ एक छोटी सी है जो आप लोगों ने देखनी है। तो मैंने आप ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया कि इससे ये C5H10 वाली, अभी आप खुद देखें कि एल्कीन मैंने दी है कि एल्केन दी है, और उसके बाद आपने दूसरा प्रोडक्ट मुझे लिख के दे देना है। दिस को सिंपली क्रैकिंग। अच्छा एक चीज़ आप देख लें जो इम्पोर्टेंट है इसमें, क्रैकिंग के अंदर आपका कौन सा कंडीशन यूज़ होता है। कंडीशन होता है कि किसी रिएक्शन को करने के लिए आपने क्या उसको सप्लाई करना है। देखो मैंने अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, मैंने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सो आई नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक है। आई नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ मशीनरी, आई नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ लेबर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक कंडीशन है कि टू स्टार्ट अ गुड बिजनेस आई नीड टू हैव दिस थिंग्स, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। इसी तरह इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है, ये ऐसे पड़ी पड़ी C10H22 नहीं टूटेगी, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप कैटलिस्ट भी यूज़ करते हो, टेम्परेचर। आप हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, या तो आप हाई टेम्परेचर लिख दें या आप सिंपली ये लिख दें 800 to 900 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यूज़ कर लें। एंड सेकेंड चीज़ आपने ये लिखना है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करें। तो कैटलिस्ट आप दो तरह के यूज़ कर सकते हैं, या तो सिलिका यूज़ कर सकते हैं या फिर जियोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी नीचे साफ करके लिख देता हूँ। सो कंडीशंस फॉर क्रैकिंग, ठीक है। कंडीशन फॉर क्रैकिंग क्या है? नंबर 1 आप 800 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करें, और दूसरा क्या है, आप कैटलिस्ट यूज़ करें, सिलिका या फिर जियोलाइट्स। सॉरी जियोलाइट्स इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस। अच्छा जियोलाइट्स का आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है। जियोलाइट्स आर बेसिकली एलुमिना सिलिकेट्स, बट इनको आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। आप इसको जियोलाइट्स लिख देना बस। क्रैकिंग में उसका क्रैकिंग का एक एटलीस्ट ये होता है। सिलिका क्या चीज़ होती है, अब ये अगर थोड़ा सा आपको स्पेलिंग का मसला आ रहा है तो सिलिका, ठीक है। सिलिका क्या चीज़ होती है? इट इज़ बेसिकली सैंड का मॉलिक्यूल SiO2, ठीक है। तो या तो आप सिलिका लिख दें या SiO2 लिख दें, दोनों में से कोई एक भी चीज़ चलेगी। सिलिका लिख दें, SiO2 लिख दें, फॉर्मूला भूल जाता है तो सिलिका लिख दें, नाम लिख दें, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि या तो सिलिका लिख दें या जियोलाइट्स लिख दें, और टेम्परेचर के अंदर 800 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख दें। ओके, ये आप आपकी कंडीशन होगी। अच्छा एक और चीज़, वन मोर थिंग जो आपने देखनी है, दिस इज़ वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग। तो देखो एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग क्या करता है। नंबर 1, आप एक लार्जर चेन को स्मॉलर चेन में ब्रेक कर रहे हो। एक बहुत बड़ी एल्केन की चेन हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे 10 कार्बन वाली एल्केन की चेन है, वो किस में ब्रेक हो गई है? 6 कार्बन वाली और 4 कार्बन वाली में। तो ये क्या कर रहा है, एक लॉन्गर कार्बन चेन को स्मॉलर कार्बन चेन में तोड़ा है, विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूल्स हैं। अब देखो आपके पास एक आपको नेचुरली एक एल्केन मिल गई है C40 कार्बन वाली, और एक फ्यूल है जिसके अंदर 9 कार्बन चलते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उस बड़ी वाली फ्यूल को क्रैक करेंगे, उस बड़े वाले एल्केन को क्रैक करेंगे टू मेक दैट पर्टिकुलर फ्यूल जो कि 9 कार्बन वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली फ्यूल को क्रैक करना पड़ेगा, बड़े वाले एल्केन को क्रैक करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई यू कैन डू क्रैकिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लाइफ स्टॉक के लिए आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए भी आप क्रैकिंग कर सकते हैं।
ठीक है। तो क्या बेसिकली लाइफ स्टॉक का मेरा मतलब ये है कि आपका जो जो एल्कीन की क्रैकिंग है वो एल्कीन प्रोड्यूस, एक तो ये हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल, ये तो आपके एल्केन की वजह से हुई, ठीक है, फ्यूल एल्केन्स की वजह से, किन की वजह से भी होते हैं। उसके अलावा ये एल्कीन भी तो प्रोड्यूस किया ना इसने, एक इसने ये एल्केन प्रोड्यूस किया, ये एल्कीन प्रोड्यूस किया। तो जो इसने एल्कीन प्रोड्यूस किया वो क्या होगी, वो आपका फीड स्टॉक होता है पेट्रोकेमिकल। इफ आई सेड लाइफ स्टॉक तो आई एम सॉरी, दैट इज एक्चुअली फीड स्टॉक, सो यूजफुल एज फीड स्टॉक फॉर द पेट्रोल। सो एल्कीन्स, मैं यहाँ पर एल्कीन नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखता हूँ यूजफुल एज फीड स्टॉक फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस भी आपको आने चाहिए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एल्कीन्स इट गिव्स अवे, ये एल्केन की वजह से था, ये एल्कीन की वजह से था। और बाकी यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए, क्रैकिंग से आपके पास एल्कीन एल्केन मिलता है, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके। सो एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग भी आपको आने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन मेजर पार्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेट्स फोकस ऑन टूवर्ड्स द थर्ड रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडिशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके पास तीन तरह के और रिएक्शन आएंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन, अब इसको ज़रा ध्यान से सुने कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एंड एडिशन रिएक्शन का हम एडिशन रिएक्शन एल्कीन की कैसे की जाती है। नंबर वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि इसके आगे फर्दर तीन ब्रांचेस हैं। नंबर वन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। मैं भी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। नंबर टू, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड नंबर थ्री, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर नहीं, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, एडिशन ऑफ स्टीम, ठीक है। सो ये तीन तरह की एडिशन आपको आनी चाहिए। एक कौन सी है, एक है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एक है एडिशन ऑफ स्टीम, और एक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन्स के अंदर हम इन तीन प्रोडक्ट्स की एडिशन करेंगे, कैसे करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, दिस इज़ अ टिप पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि इट ओनली इट को हम स्पेसिफाई करते हैं कि भी इट क्या चीज़ है। सो एडिशन ऑलवे एडिशन ओनली जब भी आप कोई एडिशन रिएक्शन करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन पूरा किया तो उससे क्या हुआ, आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आया, दो प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते इन दीस थ्री एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपको पता चाहिए, एडिशन रिएक्शन जनरली भी एक प्रोडक्ट ही देगा आपको एल्कीन के अगर आप अंदर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो मैं अंदर लिख देता हूँ एल्कीन एडिशन ओनली गिव्स वन प्रोडक्ट या गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि यार ये रिएक्शन होते कैसे हैं। तो नंबर वन, ठीक है, नंबर वन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, हाउ डू वी डू एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू एल्कीन, ठीक है, उसका हम देखते हैं। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर को अगर हम डिटेल में जाके देखें, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि आप एक एल्कीन लेते हो, ठीक है, उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, आप ऐड करते हो ब्रोमीन, लेकिन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ब्रोमीन वाटर का मतलब ये है कि आपने लिक्विड ब्रोमीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर का सिंपली यही मतलब है कि ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रोमीन ऐड किए, ठीक है। अब ऑब्वियसली कि ये भी एक रिएक्शन है, इसके भी कोई होंगे कंडीशंस होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। बस अभी तक आपने याद रखना कि एल्कीन के अंदर अगर मैं ब्रोमीन वाटर ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक हेलो एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। अब ये नाम से डरना नहीं है, जब मैं रिएक्शन लिखूंगा ना तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मैं ये बताता हूँ कि एडिशन होती कैसे, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, उसकी वजह से एडिशन होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर हम लें तो लेट्स टेक ब्यूटीन एज एन एग्जाम्पल, नहीं हम ले लेते हैं इथीन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक इथीन को अगर हम ले लें तो ये हमारे पास इथीन होती है, ठीक है, इस तरह की होती है इथीन।
इस तरह की इथीन होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ब्रोमीन वाटर ऐड किया, मतलब ब्रोमीन का मतलब है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इस तरह करके होता है, बी आर। ओ आई एम सो सॉरी अगैन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ठीक है, मैंने बैलेंस ही ज़्यादा कर दी। तो एल्कीन के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। और ये क्या है, Br2। अच्छा, अब होगा क्या, सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रिएक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। सो ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इट गेट्स गायब, एक बॉन्ड कार्बन वाला गायब हो गया। तो इसमें बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास कुछ ये चीज़, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास ये चीज़ बची, तो इसने क्या कहा, कार्बन ने कहा कि इस कार्बन ने कहा कि मेरे पास एक दो तीन बॉन्ड बचे हैं, इस कार्बन ने कहा मेरे पास भी एक दो तीन बचे, मुझे एक और चाहिए, इस कार्बन को भी एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। बट हमें ये नहीं पता कि इसको और देना कौन सा बॉन्ड है, क्या चीज़, कुछ बॉन्ड तो करना है ना, हाइड्रोजन तो मेरे पास है नहीं, मैंने तो ये मेरे पास गेंद थी, मैंने इसका बॉन्ड तोड़ दिया। होगा क्या कि ये जो ब्रोमीन आपने डाली हुई है ना, ये पूरा बॉन्ड बना हुआ है, ब्रोमीन का ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये ब्रोमीन यहाँ से अकेली हो, ब्रोमीन यहाँ से आके यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगी, और ये ब्रोमीन का एलिमेंट आके यहाँ से ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है, एटम सॉरी। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि यहाँ पे दोनों जो कार्बन हैं उनको एक एक ब्रोमीन मिल गई। तो आई कैन राइट दी रिएक्शन, अब कंप्लीट रिएक्शन अब मैं लिख सकता हूँ आगे, कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन जस्ट से, एक तो मैं कलर भूल जाता हूँ यार, विच कलर वाज आई यूजिंग, दिस वन, let me figure out which color was I using, yeah this one I think, yeah okay। so अब होगा क्या, ये कार्बन दोनों कार्बन पड़े हुए हैं, इनके पास ये हाइड्रोजन पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड अब टूट गया है, ये बॉन्ड और अब बड़ा नहीं हुआ, तो बॉन्ड में मैं बनाऊंगा नहीं। यहाँ पे इनके पास ये आ गई एक्स्ट्रा बॉन्ड की फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी कह रहा हूँ, वैकेंसी आ गई। तो हुआ क्या कि ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन जाके यहाँ लग गया, एक ब्रोमीन जाके यहाँ लग गया, सिंपल, ये एडिशन रिएक्शन हो गया। क्या हुआ कि डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड की जगह जो एक वैकेंसी बनी कार्बन के पास, वहाँ पे जाके एक जाके ब्रोमीन लग गया। अच्छा, अब ये रिएक्शन अगर आपको समझ आ गई है, मैं ये इस यहाँ पे ये इथीन लेने का एक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल रिएक्शन है कि इथीन के साथ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, ब्यूटीन के साथ कर लें, 4 कार्बन वालों के साथ कर लें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक और एग्जांपल अगर आप देखें, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखें, ब्यूटीन के साथ कर लेते हैं, ब्यूटीन के साथ आपने डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ लगाना है, सेंटर में लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके लिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आपने ब्रोमीन वाटर में ऐड किया, तो बी आर में ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या देगा, ये क्या देगा, अब आपको प्रोडक्ट बहुत आराम से बनाना चाहिए। सारे कार्बन की चेन पहले बनाए, उसके बाद जहाँ पे डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड टूट गया है अब, ठीक है, दिस डबल बॉन्ड इज़ नाउ ब्रोकन, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया है, और यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड टूट गया, एक ब्रोमीन जाके लग गई यहाँ पे, और दूसरी ब्रोमीन जाके लग गई यहाँ पे। तो आपके पास फाइनल मॉलिक्यूल क्या बन गया, अगर फाइनल मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन 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 एंड अ ब्रोमीन ओवर हियर एंड अ ब्रोमीन ओवर हियर, ठीक है। सो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। और इसको, इस मॉलिक्यूल हमको क्या हम बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा, ये मैंने सबसे पहली वीडियो में अपने को बताया था कि इस तरह के सब्सटेंस का नेम क्या होता है। इसको हम जब हमने किया था पहली वीडियो में तो नहीं, मैंने एल्केन वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि अब आप इसके अंदर से क्या हो गया, अच्छा हाँ डाइब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल ठीक है। या अगर आपने इसकी नेम की डिटेल में नहीं जाना तो ना जाए, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है, इसका नेम नहीं आपसे पूछेगा। इसको बस ये बोल दे कि ये एक हेलो एल्केन बन गया। हेलो क्यों बोला, क्योंकि ये हेलोजन था, हेलोजन लगा हुआ है, ब्रोमीन इज अ हेलोजन, और बाकी आ गया एल्केन या एल्कीन इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, क्योंकि एल्कीन के अंदर हमने एडिशन किया। सो एडिशन समझ आ गई होगी, आई होप के एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर समझ आ गई होगी। अच्छा,
एक चीज़ अब यहाँ पे आपने देखनी है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। ज़रा इसको गौर करके देखेगा। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया, क्यों? स्टार को एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ टेस्ट फॉर एल्कीन्स। तो अगर आपको ये नहीं पता, देखो आपके पास, आप लैब में जाएंगे ना, आपके पास एक जार के अंदर मैं इतने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स रख दूँ और मैं आपको बताऊँ इसके अंदर एल्कीन है कि नहीं, तो यू कैन नॉट जस्ट सी एट दैट थिंग एंड से कि यार एल्कीन है कि नहीं, क्योंकि कलरलेस होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब हाउ डू साइंटिस्ट फाइंड आउट कि यार कोई चीज़ एल्कीन है, इस जार के अंदर एल्कीन है, कैसे पता चलेगा? एल्कीन, उनको कन्फ्यूजन है कि एल्कीन है कि एल्केन है। उसके लिए एक टेस्ट है, एल्कीन के लिए एक टेस्ट होता है। अगर आप ये टेस्ट सक्सेसफुल आ गया तो एल्कीन होगी, अगर सक्सेसफुल नहीं आया तो एल्केन होगी। जाहिर सी बात है और चीज़ें भी हो सकती हैं, बट फॉर दिस केस आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू कि आपका एक जार है उसके अंदर एल्केन और एल्कीन है, और ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि क्या एल्केन है कि एल्कीन है, ठीक है, यू आर कन्फ्यूज। तो अब उसके लिए आप एक टेस्ट करें, क्या टेस्ट करेंगे? ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये एक टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रोमीन वाटर का एक टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि देखो जब आप ब्रोमीन वाटर आपके पास है, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। लेकिन उसके बाद दिस थिंग ब्रोमीन वाटर किस में चेंज हो जाएगा? ये हेलो एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका कलर क्या होगा? कलरलेस। क्यों? ये एक चेंज आया है, देखो क्या चेंज आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन से कलरलेस एक चेंज आया है इस पूरे रिएक्शन में। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये ब्रोमीन पड़ी हुई है, ये वाली जो ब्रोमीन पड़ी हुई है ये ब्राउन कलर की है, और यहाँ पे जाके ये जो हेलो एल्केन बना है ये कलरलेस है। तो क्या चेंज आया है कि जो आप, अगर आप फॉर एग्जांपल वो जार है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी ब्रोमीन वाटर ऐड करूँगा। मुझे पता है ब्रोमीन वाटर किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की, दैट्स व्हाट आई नो, क्योंकि ब्रोमीन डली हुई है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, तो ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन हो गया। जैसे मैंने ऐड किया, अगर तो हुई एल्कीन तो वो रिएक्ट कर जाएगी, और वो जो ब्रोमीन वाटर मैंने ब्राउन ऐड की होगी ना, वो कलरलेस हो जाएगा, पूरा जार दोबारा कलरलेस हो जाएगा। सो से अच्छा यार इसमें एल्कीन पड़ी हुई है, वो रिएक्ट कर गई है मेरे ब्रोमीन वाटर के साथ। लेकिन अगर एल्केन हुई, तो मैंने आपको बताया था एल्केन रिएक्ट नहीं करता किसी भी हैलोजन के साथ, वो एल्केन रिएक्ट नहीं करता जनरली, बहुत अनरिएक्टिव होता है, उसका एक सिर्फ एक रिएक्शन होता है। हाँ, अब आप मुझे आके कहेंगे कि आपने बताया था कि एल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, वो जो रिएक्शन था वो था वो था सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और उसके लिए एक कंडीशन थी, यूवी लाइट ज़रूरी थी, और क्या ज़रूरी था? रूम टेम्परेचर। अब मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को यूवी नहीं दे रहा, ठीक है, ये मैं उस जार को बंद करके, मतलब एल्यूमिनियम फॉयल या कोई चीज़ उसको ओपेक करके फिर करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यूवी नहीं चाहिए, यूवी के बगैर मैंने टेस्ट करना है ब्रोमीन वाटर के साथ। देखो ब्रोमीन वाटर इन अदर केसेस में अगर ऐड कर भी दूंगा एल्केन के अंदर, यूवी अगर नहीं प्रेजेंट होगी, तो मुझे एक चीज़ फॉर श्योर होगी कि यार एल्कीन वाला रिएक्शन हो जाएगा, एल्केन वाला रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यूवी के साथ देर इज़ नो कलर चेंज। जब मैं एल्केन वाला रिएक्शन करूँगा तो उसके एल्केन के अगर मैं ब्रोमीन डालूंगा, यूवी दे दूंगा, मुझे ये नहीं पता होगा कि कलर, मुझे कलर वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि उसमें मैं ब्रोमीन वाटर नहीं डालता, उसके अंदर मैं ब्रोमीन एज अ, मतलब जो सब्सटेंस है वो डालता हूँ, ठीक है। तो उसमें मुझे कलर चेंज ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे कलर चेंज मिलेगा, ब्रोमीन वाटर ब्राउन होती है वो वाइट हो जाएगी, वाइट कह रहा हूँ, कलरलेस हो जाएगा पूरा, आपका प्रोडक्ट कलरलेस हो जाएगा। और ये यूवी के बगैर करूँगा ताकि आप इंश्योर कि ये एल्कीन ने ही रिएक्ट किया। और अगर वो यूवी के बगैर वाला रिएक्शन ना हुआ, ब्रोमीन वाटर आपने जो ब्राउन डाली है वो ब्राउन ही रही उसके प्रोडक्ट के अंदर, जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा नहीं। फर्स्ट पार्ट उस एल्कीन साइड पे हो जाएगी, ब्रोमीन उसके अंदर ही पड़ी होगी मिक्स तरह के, मतलब एक सब्सटेंस आपका सोल्यूशन पड़ा होगा, तो ब्राउन सा आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये एल्केन है, क्योंकि एल्केन रिएक्ट नहीं किया हुआ। दैट्स इट, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। दिस इज द टेस्ट फॉर एल्कीन। कैसे है? क्योंकि ब्रोमीन वाटर ब्राउन होती है, जब आप उसको एल्कीन में डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो पूरा एल्कीन थी, ये जो आपका सब्सटेंस पड़ा हुआ था ये एल्कीन थी। नंबर टू रिएक्शन हमने नंबर 2 पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रोमीन वाला, सारे एडिशन रिएक्शन एक तरह के हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होगा। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, अगेन इसमें आपके पास अब ये रिएक्शन तो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज एल्कीन के अंदर मैं जब हाइड्रोजन ऐड करूँगा,
तो ये मुझे क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे, बहुत सिंपल होता है। सो आप अच्छा एक चीज़ अब मैं आपको ना एंड पे जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, देन आई विल एक्चुअली मेक रोड मैप्स फॉर दी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर। रोड मैप का रिएक्शन रोड मैप ये होता है कि मैं ये बताऊंगा कि एल्केन से अगर एल्कीन बनानी है तो क्या करें, या एल्केन से अगर एल्कीन बनानी है तो क्रैकिंग करें। अभी ऊपर पड़ा है कि क्रैकिंग क्या होती है कि जब आप बड़ा एल्केन ले लें उसको तोड़ेंगे तो एक एल्कीन बनेगी और बाकी एक और एल्केन बनेगा। तो अगर एल्केन से एल्कीन बनानी है क्रैकिंग करें, अगर एल्कीन से एल्केन बनानी है तो आप क्या करें, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जो रिएक्शन हम अभी करने लगे कैसे करेंगे, एक एल्कीन ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोपीन मैंने ले ली, ठीक हो गया। बाकी ये मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिए इस प्रोपीन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया। हाइड्रोजन H2 होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब होगा क्या, अगेन सेम चीज़ होगी, यहाँ से एक बॉन्ड आपका टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये जो बाकी वाले हाइड्रोजन है ना, ये वाले ये खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह, पहले इसके पहले तो कार्बन ने अपने साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, अब कार्बन ने 2 और हाइड्रोजन भी बुला दिए, तो हमारे साथ और हाइड्रोजन भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तो इस कंपाउंड के पास पहले से थे। अब जो हाइड्रोजन आए हैं वो ये वाले आए हैं, ये एक हाइड्रोजन आया, ये एक हाइड्रोजन आया। अगर मुझे एक चीज़ बताएं, इस कंपाउंड का मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का, ठहरे मैं ज़रा कलर डिफरेंट चूज़ करूँ ताकि हाईलाइट हो। कंपाउंड का फॉर्मूला, ये एल्कीन थी ना, C3H6, ये फार्मूला था। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, H2। तो अब ज़रा मुझे इसका फॉर्मूला बताएं, ये जो ये चीज़ बनी है इसका फॉर्मूला क्या है, C3 हाइड्रोजन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8। व्हाट डज दिस फार्मूला मीन, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये तो प्रोपेन का फार्मूला है, प्रोपेन का फार्मूला है ना। और ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास प्रोपीन थी और ये हाइड्रोजन है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड की, तो मेरे पास क्या बन के आया, एक एल्केन बन के आया। तो ये रिएक्शन क्या करता है, एल्केन को फॉर्म करता है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन के लिए देयर इज़ अ कैटलिस्ट यूज्ड, उस कैटलिस्ट का नाम है निकल, ठीक है। निकल एक एलिमेंट है, निकल, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ यूज्ड, ये वाला कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और साथ आप टेम्परेचर यूज़ करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस का। एग्जैक्टली अगर आप ये कंडीशन लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंडीशंस आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन की कंडीशन, ब्रोमीन वाटर वाले रिएक्शन की कोई ऐसा खास कंडीशन नहीं है, ऐसे मैंने लिखी नहीं, अदर देन ब्रोमीन वाटर। उसकी कंडीशन में आप तक ब्रोमीन वाटर लिख देना कि ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, वो रीजेंट ही पूछेगा, दैट इज़ द ब्रोमीन वाटर इज़ अ रीजेंट, ठीक है, नॉट अ कंडीशन। सो इसमें पहली कंडीशन ये है कि आप निकल एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, निकल एज अ कैटलिस्ट। और दूसरी रीज़न क्या है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ब्रोमीन एज अ कि आप 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, बस। दीज आर द 2 कंडीशन जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, एडिशन विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लेट्स गो ऑन टू हमारा नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन इधर तक ही था कि अगर आपने एल्कीन से एल्केन बनाना है तो आप एडिशन विद हाइड्रोजन करते हैं। और आई होप कि डबल बॉन्ड ब्रेक करने वाली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमने देखना है थर्ड वाला रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या चीज़ है, थर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीनों एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे शुरू में कहा है, एडिशन ऑफ स्टीम, ठीक है। अब स्टीम को देख के आपने कंफ्यूजन हो गया, स्टीम क्या चीज़ होती है, स्टीम होती है वाटर बट इन द गैसियस स्टेट। वाटर जो आप यूजुअली आप देखते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है, बट दिस इज वाटर इन द गैसियस स्टेट। तो जब मैं गैसियस स्टेट का वाटर एल्कीन के अंदर ऐड करूँगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो देखें एल्कीन मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैं स्टीम नहीं लिखूंगा, मैं इसको वाटर लिखूंगा, ठीक है, वाटर गैस। तो जब मैं ये ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक अल्कोहल बन जाएगी। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऊपर वाला रिएक्शन आपने देखा है कि जब मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो मेरे पास एल्केन बनी है, जब मैं वाटर ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। कैसे बनेगी, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटर ऐड करने से अल्कोहल कैसे बन गई भाई। अल्कोहल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, अल्कोहल का जनरल ग्रुप क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है अल्कोहल का, CnH2n+1OH, ये OH लगा होता है साथ, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या था, एल्कीन क्या थी, CnH2n। अब एक काम हुआ यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन बढ़ गया और एक OH आके लग गया, तो ये एक एडिशन आपके पास किस चीज़ की हुई है, एक हाइड्रोजन की और एक OH की, ये आपने ऐड कर दी है,
एल्कीन के अंदर। जब एल्कीन के अंदर ये ऐड कर दिया तो आपके पास एक एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं रिएक्शन हुआ कैसे। तो एक कोई भी एल्कीन पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं इथीन, दोबारा पकड़ते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ये मैं टेढ़े करके हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इस तरह भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी करके लगा सकते हैं। ओ लेवल में इतनी माइन्यूट चीज़ों पे नंबर नहीं कटते, ठीक है। ओके, अब इसमें जब मैं स्टीम ऐड करूँगा, रिमेंबर फॉर योर होल लाइफ, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है आगे या ए लेवल में भी पढ़नी है, वाटर को अगर आपने बॉन्ड्स में डिपेक्ट करना है तो ऐसे डिपेक्ट करना है ऑलवेज। HOH वाटर कैसे होता है, HOH इस तरह ही डिपेक्ट करना है, इसके अलावा डिपेक्ट नहीं करना वाटर को, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कुछ। तो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। इस तरह डिपेक्ट नहीं करना वाटर को, ठीक है। वाटर को डिपेक्ट करना ही नहीं है इस तरह, वाटर को डिपेक्ट करना है HOH करके, कि यार एक H है और एक OH है, इस तरह डिपेक्ट नहीं करना, जैसा मैंने अभी बताया। दिस इज़ द करेक्ट डिपेक्शन ऑफ वाटर। तो यार मैंने स्टीम ऐड की इधर इस कंपाउंड में, तो देखो क्या होगा, अगेन वही कहानी होनी है एडिशन वाली, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसका बॉन्ड भी टूट जाएगा। अच्छा, एक तरफ जाके लग जाएगी हाइड्रोजन, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक कार्बन को हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि OH वाला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये कार्बन ये कार्बन। अच्छा, इसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले थी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पहले थी, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन थी, यहाँ पे हाइड्रोजन थी। तो उसके बाद अब एडिशन क्या हुई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग गई ये वाली, और यहाँ पे एक OH आके लग गया, ठीक है। एंड दिस इज नाउ एन अल्कोहल, ये क्या बन गया है, एक अल्कोहल बन गया है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कि हमने देखा कि भाई ये जो है यहाँ पे इथीन है, इसके अंदर जब मैंने वाटर ऐड किया तो मेरे पास बन गया एथेनॉल। और अगर आपको ये क्वेश्चन है कि एथेनॉल को मैंने नेम कैसे किया, अगेन गो बैक टू माई फर्स्ट वीडियो। अब जो अल्कोहल की वीडियो नेक्स्ट है, इसके बाद अल्कोहल्स की वीडियो ही है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अल्कोहल की नेमिंग। बट अगर आपको अभी भी क्वेश्चन है कि यार अल्कोहल कैसे बना है, तो हम अगेन टेलिंग यू कि ये एथेनॉल कैसे बना है, तो हम अगेन टेलिंग यू कि मेरी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं, तो वहाँ से जाकर देख लें कि एथेनॉल कैसे बना है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ आपसे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज़ आई होगी, ठीक है, इट्स और अगर ये चीज़ आई है देन इट्स गुड, आप लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो था, अच्छा इसमें भी वो काम हो सकता है कि यार देखो आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है, ये दो कार्बन हैं, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है HOH। अब मैंने आपसे कहा कि ये बॉन्ड टूट गया, तो आपने कहा ठीक है भाई टूट गया। तो आपने कहा कि यार यहाँ पे ना अगर ये बॉन्ड टूटा है ना तो यहाँ पे एक वैलेंसी बन गई है, एक यहाँ पे वैलेंसी बन गई, एक यहाँ पे वैलेंसी बन गई। मैंने कहा बिल्कुल भाई। आपने कहा कि यार यहाँ से एक H यहाँ लग जाएगा, यहाँ से एक OH यहाँ से लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कि मैंने कहा कि नहीं बाकी बातें ठीक है, ये बात ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो कि यार एच या ये वाला H आके इस कार्बन को मिला, ये वाला OH आके इस कार्बन को। मैंने कहा यार ये आपने कैसे डिसाइड किया, देखो इस कार्बन के पास ये वाला OH क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, और इस कार्बन के पास ये वाला H क्यों नहीं आ सकता। मैंने आपसे क्वेश्चन किया और आपने मुझे कहा आ सकता है, आप ये वाला OH इस कार्बन को दे दो, ये वाला H इस कार्बन को दे दो। कार्बन खुश है, कार्बन को अपना बॉन्ड पूरा करना है, कार्बन को और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, कार्बन को इस चीज़ से गर्ज है मेरा एक बॉन्ड टूट गया भाई, मुझे एक बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ से कोई भी एक चीज़ आके यहाँ पे लगा दो, H लगा दो, OH लगा दो, चल जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज इन O लेवल्स ओनली, कि कार्बन को अपने बॉन्ड से गर्ज है। O लेवल्स तक कार्बन को बॉन्ड से गर्ज होगा, A लेवल्स में जाके कार्बन को इस चीज़ से भी गर्ज होगा कि मेरे साथ आके बॉन्ड क्या चीज़ कर रही है, ठीक है। बट O लेवल के अंदर यू कैन, अब मैं क्योंकि ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है, इसमें इतना ज़्यादा ये बात समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, इस पूरी बात का क्रक्स क्या होगा, इस पूरी बात का क्रक्स ये होगा, यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूँ एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसमें थोड़ा सा सोचें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं आप फॉर एग्जांपल प्रोपीन ले लूँ, अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास ये दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है। अब मैं इसके अंदर HOH ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि ये बॉन्ड टूटेगा, मैंने कहा जी भाई टूट जाएगा। आपने कहा कि ठीक है भाई अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई। आपने कहा कि मुझे ये बताओ ये कार्बन को क्या मिलेगा, H मिलेगा कि OH, तो मैंने कहा कि यार कुछ भी दे दो, ये H जाके दे दो। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अब आपने कहा कि इस कार्बन को क्या, अब आपने कहा अच्छा इसको H मिला तो ये OH बच गया, ये इस कार्बन को जाके दे दो। मैंने कहा ठीक है यार दे दो, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ओ लेवल्स के अंदर है कि कार्बन को गर्ज नहीं है क्या चीज़ आके लग रही है, एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। आप OH यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, कैम्ब्रिज वाला एग्जामिनर ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एच अगर आप यहाँ लगा, इस प्रोडक्ट को अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, तो ये प्रोडक्ट आपने इस तरह बनाया है, ठीक है। बाकी ये जो मैं ब्लैंक बार छोड़ा हूँ इसका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने इस तरह बनाया है। अब एक प्रोडक्ट इस तरह बन सकता है, फर्स्ट करें मैं हाइड्रोजन और ये जो दोनों हैं इनकी पोजीशन फ्लिप करके लगानी थी। मैंने कहा कि नहीं यार इस कार्बन को हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसको हाइड्रोक्साइड चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने कहा यार ठीक है ये भी ठीक है। अच्छा सो अब जब ये एल्कीन टूटी है तो इसने क्या बनाया है, अब इसने दो अल्कोहल्स बना दिए डिपेंडिंग ऑन कि हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइड की पोजीशन क्या है, एंड दीज टू अल्कोहल्स आर डिफरेंट अल्कोहल्स। ये आपस में सेम नहीं है, आपको देखने में सेम लग रही होंगी, इनके नाम भी डिफरेंट हैं, नाम की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात आपको ये भी लग रहा होगा कि यार है तो अल्कोहल तो सेम नहीं, और 3 कार्बन वाली अल्कोहल हो तो यार प्रोपेनॉल ही होंगी ना, ये भी प्रोपेनॉल ये भी प्रोपेनॉल। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये है प्रोपेनॉल दोनों ही, लेकिन हाइड्रोक्साइड की पोजीशन यहाँ पे नंबर 1 कार्बन के ऊपर है, नंबर 1 कार्बन के ऊपर है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की पोजीशन यहाँ से भी नंबर 2 पे है, यहाँ से भी नंबर 2 पे है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की पोजीशन नंबर 2 पे है, और अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड का सेम मेन खेल है। तो मैंने आपको कहा कि यार यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की पोजीशन चेंज है, ये प्रोपेनॉल नहीं हो सकता। प्रोपेनॉल है लेकिन प्रोपेन 2 ऑल है, दो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है प्रोपेनॉल से। तो ये थोड़ी सी डेप्थ में चला जाता है काम, इसलिए मैंने आपको बताया कि एट एन ओ लेवल्स का जो स्कोप है उसके ऊपर आपने क्या करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ना है, और दोनों कार्बन में से किसी को भी हाइड्रोजन दे देना है, किसी को भी हाइड्रोक्साइड दे देना है। एग्जामिनर आपको नहीं पेनल्टी देगा इस बात पे कि आपने किसको हाइड्रोजन दिया, बिकॉज एक्चुअली अब ये भी एक क्वेश्चन है फॉर सम, ये भी एक क्वेश्चन होगा कि यार मुझे ये बताओ कि असल में किसके पास जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट ठीक है कि ये वाला प्रोडक्ट ठीक है। आपको कहूँगा कि दोनों प्रोडक्ट्स ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स कि मैं अगर देखो केमिस्ट्री इतनी अच्छी चीज़, इतनी मतलब इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल कि मैं आपको ये बता दूंगा कि यार अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मैं एक रिएक्शन एक्स करूँगा, और अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मैं एक रिएक्शन वाई करूँगा। ये चीज़ जाके आप A-levels में सीखेंगे कि ये एक्स क्या और वाई क्या है। लेकिन इन अ जर्नल वे अगर आप एक नॉर्मल वे में ये रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर कौन सा वाला बनेगा, वो एक रूल होता है जो इसको डिसाइड करता है। वो कौन सा रूल होता है, मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा मार्क, ताकि आपको अगर किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो स्किप कर ले वीडियो। इसके बाद इसमें कुछ है, देयर इज़ मच टू से अबाउट, ये तीनों रिएक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एल्कीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मार्कोव निकोव रूल, ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हो अगर आपको इसके स्पेलिंग थोड़े से अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो गूगल पे जाके आप लोग देख लें मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। ये रूल बताएगा कि यार किस पे हाइड्रोक्साइड लगना चाहिए, किस पे कार्बन लगना चाहिए, बट उसकी रीज़न आपके कंप्लीटली बियॉन्ड हो जाएगी सिलेबस के, यार यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट के यार मुझे समझ नहीं आई कि यार इसने क्या क्यों इसने रीज़न तो दी हुई है कि उसमें आपके पास एक चार्ज डेंसिटी की रीज़न होती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रीज़न होती है, ठीक है, और आपके पास और बहुत होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड कहाँ जाना पसंद करता है। इट्स वेरी डिटेल्ड, ठीक है। तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा बात, अगर किसी को शौक़ है वो इसको जाके देख ले। मैं दोबारा कहूँगा कि ये एक बहुत सी एक्सेप्शनल सी चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ वेरी नॉट इन सिलेबस, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, नॉट इन सिलेबस, मैंने वैसी बात बताई है, ठीक है। अच्छा, और इसका एंटी मार्कोवनिकोव भी होता है, अगर इसका मार्कोवनिकोव रूल है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी होता है, यार हर चीज़ें लेवल में होंगी, ठीक है। खैर अभी फॉर दिस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास एक, अच्छा और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्कीन्स भी दो तरह की होती हैं। ये जो मैंने नीचे एल्कीन बनाई है ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, क्यों, क्योंकि ये बहुत एक ऑब्वियस चीज़ है कि अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कैसे ऑब्वियस है भाई, मुझे आपको तो ये लग रहा होगा मेरे लिए ऑब्वियस नहीं, आपके लिए कैसे ऑब्वियस है। ऑब्वियस इसलिए क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखो मैं ये कहूँगा कि डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड पे कितने कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, इसके राइट हैंड साइड पे 2 कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, कार्बन इन बैलेंस नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है कार्बन बैलेंस नहीं है, ये अनसिमेट्रिक हो गई। अब ऊपर वाली में देखो
इसमें देखो जो मैंने ये एग्जांपल कराई थी, ये क्या है, अनसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें कार्बन के डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, सो दैट मीन्स कि ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है। तो जो सिमेट्रिक एल्कीन्स होती हैं वो ए लेवल में जाके भी आपको एक प्रोडक्ट ही देंगी। दिस मैक्सिमम एट मैक्सिमम मेक्स ओनली वन प्रोडक्ट विच इज़ दिस प्रोडक्ट। जो अनसिमेट्रिक एल्कीन होती हैं वो आपको दो प्रोडक्ट दे सकती हैं, बट दैट इज़ एन ए लेवल थिंग। इन ओ लेवल्स यू विल ओनली मेक वन प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने ये एग्जांपल देखी है, ये जो पूरी एग्जांपल है, दिस इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ अ मेस, तो मैं इस पूरी चीज़ को निकाल देता हूँ बाहर, ठीक है, कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। आपको अगर आ गया एल्कीन को बनाना, ठीक है, ये प्रोपीन को अगर आपका रिएक्शन आ गया इस तरह, तो आप कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने ओ एच कहाँ लगाना है, एच कहाँ लगाना है, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसको अगर आप मैं ओ एच एच के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने ओ एच कहाँ लगाना है। मैं इसकी स्विच भी कर सकता था, इन दोनों की पोजीशन में स्विच भी कर सकता था, ठीक है। दैट वोंट मैटर इन ओ लेवल्स बट इन ए लेवल इट विल। तो आप ये बस देख लें कि इसको मैं स्विच करके लिख सकता था, एच ओ एच को, दोनों तरह से वैलिड है। लेकिन आपने एक ही प्रोडक्ट लिखना है, या तो ये लिखेंगे या आप स्विच करके लिखेंगे, दोनों नहीं लिखने, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास एच ओ एच आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ये लिख दें या इसको स्विच करके लिख दें, ये बात मेन है। सो एल्कीन के एडिशन आई होप, अच्छा इसके इसका एक अच्छा इसका एक छोटा सा एक चीज़ रह गई है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बिकॉज रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। किन की एक कंडीशन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इस रिएक्शन की कंडीशन है वो ये है कि आप इसके अंदर एक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन ये है कि आप एक एसिड कैटलिस्ट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। कैसे? जैसा फॉर एग्जांपल मैं H2SO4 डाल सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर H2SO4 यूज़ होता है, H2SO4 ही आप लिख लें। H2SO4 आप कंडीशन में अगर आपने लिखना है, कंडीशन फॉर रिएक्शन, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि यार H2SO4 बस, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू यूज़। बाकी इतना कोई हीटिंग की इतनी कोई कंडीशन नहीं होती इसकी, ठीक है। तो आप रूम टेम्परेचर पे इसको ऊपर कर सकते हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, आपसे ज़्यादा यही पूछेगा कि एसिड से होगा काम, ठीक है। अल्कोहल, अगर मुझे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, एडिशन विद स्टीम। तो ये थोड़ा सा मेसी, आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा मेसी हो गया, बट जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, ये जो मैंने आपको समझाया है थोड़ी डिटेल में। बाकी आप ये आपको आना चाहिए कि एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं और अल्कोहल कैसे बनती है। बाकी आई होप दिस वीडियो मेड सेंस एंड दिस वीडियो वाज all in all a good overview of alkenes and how alkenes work. The next topic we're going to do is alcohols. अल्कोहल पे वीडियो जो आएगी वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, उसके दो रिएक्शन हैं अल्कोहल के, दैट्स इट। और रिएक्शन भी इतने मुश्किल नहीं है। एल्कीन इज़ द मेन थिंग आपको जो करनी पड़ेगी इन ओ लेवल्स। So I hope this video is clear to you guys and you guys now have a good idea of what alkenes and alkanes are. I will see you guys in the next one.